So, hello students. Last lecture we are talking about periodic trends of the modern periodic table, in which we are going to we have already saw valency and the atomic size of the element. Now the third periodic trend which we are going to see is the metallic and non-metallic characters. So now students, uh, we can see right in front of the screen modern periodic table, and we can also very clearly see the zigzag line. Here is the zigzag line which we can see it moves like that. Okay, so this zigzag line separates the modern periodic table into metals and non-metals. So now where are the metals located in the modern periodic table? So we can say metals are located on the left side of the modern periodic table. On the left side of the modern periodic table. So these are the elements which are metals, and they are located to the left side of the modern periodic table. They are located to the. So now where are the non-metals located? Yes, non-metals are located at the right side of the modern periodic table. At the right side of the modern periodic, these are the right side of the modern periodic table, which shows the non-metals on the right hand side of the modern periodic table. Okay, so now this zigzag line is very important, because this zigzag line separates metals to the left from the non-metals to the right. So now we can say that this zigzag line elements are called as metalloids. So this element, boron, is a metalloid, silicon, germanium, arsenic, antimony, beryllium, polonium, and we can say astatine. So these are the elements which are called metalloids. Now what are metalloids? Metalloids are those elements which have intermediate properties of both metals and non metals. ऐसे एलिमेंट्स जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टीज मौजूद होते हैं, दैट एलिमेंट्स वी आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स, एंड मेटलॉइड्स आर शोन इन द zigzag line in the modern periodic table. Metalloids are shown by the zigzag line in the modern periodic table. Now if I talk about the third period, that is this period, we can see that sodium, magnesium and aluminum are the three metals which are located to the left side of the modern periodic table. And now if I talk about the non-metals, then it will be phosphorus, sulfur, chlorine. So these are the three elements which are non-metals, and right in between these metals and these non-metals, we can see a metalloid, that is silicon. So if I put a question that look at the elements of the third periodic table, classify them into metals and non-metals, so what will be the answer? Sodium and magnesium. Sodium and magnesium will be the answer for it, and aluminum also we can write, and non-metals will be phosphorus, sulfur and chlorine. Okay, now if I ask you one more question, that uh, on which side of the plate are the metals, left or right? So your answer will be metals are on the left side of the modern periodic table. So these are the metals which are on the left side of the modern periodic, left side of the zigzag line, left side of the zigzag line, or else we can also say left side of the modern periodic table. So now question number 3, suppose if I ask you, on which side of the period do you find the non-metals? So in a period we can find the non-metals towards the right of the zigzag line, or else we can say that non-metals are located at the right side of the
modern periodic table. So here similar pattern is observed in other periods also. We can, if we can see this period number 4, we can say that this potassium, calcium, this is gallium, these are the metals, and this selenium, and and to the right of this uh, zigzag line are the non-metals. So this germanium and arsenic are the metalloids. Germanium and arsenic are the metalloids. Okay. So now, so we can say that the zigzag line separates the non-metals from the metals in the periodic table. So students, now let us compare the chemical properties of metals and non-metals. So here we are going to see that when metals and non-metals react with each other chemically, so we are going to see the properties of that and its characteristics. So students, this full para I am going to explain you on the whiteboard. Okay. Now students, we know the ionic compound, famous ionic compound, that is NaCl. Okay, NaCl is the famous ionic compound. So this is formed by reacting two elements, that is sodium and chlorine. Okay, sodium and chlorine are the two elements. In this, sodium is the metal, and chlorine is the non-metal. So now this is the ionic formula, or we can say the chemical formula of sodium chloride. Now in this, sodium ion is positive, that is Na plus, and chlorine ion is negative. So this chlorine one, we say it as a anion. So ANION. Okay, and this Na plus, we say it as a cation. So that is CATION. So these are the when this sodium atom loses one electron, it forms Na plus, and when this chlorine atom takes one electron from sodium, so it becomes chlorine negative, that is chlorine anion. Okay students. So in this, sodium is the metal. So we can say that metals have a tendency to lose electron, and non-metals have a tendency to accept electrons. Non-metals have a tendency to accept electrons, and metals have a tendency to lose electrons. So metals loses electron and forms cations, and non-metals accept electron and form anion. So this property of losing electrons, this sodium atom loses one electron and forms cations. This property is called as electropositive property. Which property? Electropositive property. Positivity. Electropositivity. Okay. Similarly, when non-metal receives one electron, so that property is called as electronegativity. So in this, here chlorine is the non-metal, so it receives one electron from sodium, so therefore chlorine becomes electronegative. So students, this metal have a tendency to lose its last shell electron, and it loses one electron and forms a sodium ion, which have electronic configuration 2 and 8. It means that the last shell is gone. इसका last shell नहीं है, यहाँ पर जो है last shell नहीं है. Okay, so now the electronic configuration of neon is also 2,8. So this metal attains the stable electronic configuration of the nearest, that is neon. Okay.
Similarly, this chlorine atom, students, have electronic configuration 2, 8, 7. That means there are 7 electrons in its outermost orbit. So this chlorine atom will not lose 7 electrons from the outermost orbit. It will take 1 electron from the sodium, suppose, and sodium chloride will form. Sodium chloride will form. So now its electronic configuration becomes 2, 8 and 8. So this 2, 8, 8 electronic configuration is of argon. So that is 2, 8, 8. So chlorine anion, this minus, Cl minus means anion because it accepts 1 electron from sodium. So now this chlorine anion is have the property of electronegativity. Okay. Okay, so now moving to the next point, students. This is an atom. This is an atom of sodium. This is an atom of sodium. We can see this is the nucleus, and this is the K shell. This is the L shell, and this is the M shell. So we can see that this is nucleus. Okay. So now these electrons, these are the electrons. All these electrons are held by an attractive force exerted on them by positively charged nucleus. So all these electrons are attracted towards the center, that is towards the nucleus. All these electrons, they are held by attractive force uh, uh, by the positively charged nucleus. So the electrons in the inner shell, तो this is the inner shell, K shell is the inner shell, ये जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, this and this. So lies electrons in the inner shell, that is L shell. अभी यहाँ पर L shell जो है इनर शेल, K shell इनर शेल है और L shell भी इनर शेल है, और M shell जो है that is the outermost, M shell जो है वो that is the outermost orbit. So now the shells between K shell and M shell is the L shell. Shells between K shell and M shell is the L shell. So now because of the presence of the effective nuclear charge exerting on attractive force on the valence electron is somewhat less than the actual nuclear charge. तो अभी ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वह जो चार्ज जो है वो जो एग्जर्ट कर रहा है अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो न्यूक्लियस जो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट कर रहा है ऑन दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन. Now we will see how is the ability to lose or accept electron. मतलब कि जब एटम या ये जो एटम है ये कैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या एक्सेप्ट करेगा इन द वैलेंस शेल. वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, जो मैंने आपको बताया, ये आउटर मोस्ट शेल है, दैट इज़ एम शेल. ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा या लूज करेगा कि ये एक्सेप्ट करेगा, ये कैसे पता करेंगे. सो नाउ हमें पता है कि ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स. ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर भी इवन के शेल के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है. ये सारे इलेक्ट्रॉन जो एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या करता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करता है. बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड इन देयर ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन जो है अपने अपने ऑर्बिट में रहते हैं स्टूडेंट्स. सो नाउ ये इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल, अभी इनर शेल कौन सा है, यहाँ पर के शेल है और एल शेल है. ओके, तो के शेल और एल शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो जैसे कि ये के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये 8 और 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है दे लाइन बिटवीन एम शेल एंड द न्यूक्लियस. एम शेल और
न्यूक्लियस के बीच में लाए हो रहे, तो व्हाट विल हैपन, तो ये जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स जो है ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ दिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, कम होगा। कम वाई, क्यों कम होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है के शेल के और एल शेल के दोनों के बीच में आ रहे। ओके, सो देयरफॉर इट हैज़ अ less attractive force on the valence electron. Okay, then the actual nuclear charge, actual nuclear charge जो है उससे बहुत ही कम होगा। सो नाउ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स, अभी मेटल्स के अंदर अभी ये मैंने आपको सोडियम का बताया था, तो उसी तरह से मैग्नीशियम के पास जो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सोडियम क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे देगा या फिर किसी और को भी दे सकता है। एंड दिस मैग्नीशियम जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देंगे, और एल्यूमिनियम भी है ये किसी और को 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। तो इस तरह से मेटल्स के पास मोस्टली आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कभी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कभी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और तो कभी 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये तीनों अगर 1 इलेक्ट्रॉन है इन द आउटरमोस्ट शेल तो वो दे देगा, लूज़ करेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो दे देगा, और एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या करेगा, वो भी 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। एंड it will lose these electrons from the outermost shell and form cations, and hence metal have a tendency to lose electrons. Now the effective nuclear charge जो है exerting attractive force on valence electron is small। तो मैंने आपको ये बताया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अभी ये न्यूक्लियर चार्ज जो है टोटल जो इफेक्ट आ रहा है इसके ऊपर, ये जो है बहुत ही स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, क्योंकि बाहर आप देख रहे हैं एक ही इलेक्ट्रॉन है। एज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस 2 फैक्टर्स मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो देख रहे हैं कि आप कैसे इलेक्ट्रॉन जो है इस केस में लूज़ हो गया है, और ये मेटल है, और मेटल है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा, क्योंकि मेटल के पास बाहर या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। सो एज अ कंबाइंड effect they have a tendency to lose valence electron and they form cations, so they form Na+ मतलब कैटायंस। और फिर बाद में अगर मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो व्हाट विल वी कैन राइट Mg2+, और फिर एल्यूमिनियम होगा तो लिखेंगे Al3+। तो 3+, व्हाट डू मीन बाय 3+, ये 3+ का मतलब ये होता है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा है किसी को। ओके, so this tendency of an element is called as electropositivity and is the metallic character of that element. If we see this figure 2.10, periodic trends in elements, so here this is the modern periodic table. So this is the modern periodic table, layout of modern periodic table we can say. In this we can clearly see that it is mentioned that decreasing atomic radius, when we this arrow we have to refer this arrow आप देख रहे हैं कि left to right जब जा रहा है, that means in a period, so what will happen, atomic radius will decrease। मैंने आपको बताया था कि वह डिज़ाइन जो मैंने आपको बताया था कि छोटा सा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, और थोड़ा बड़ा होगा, एंड देन अगेन स्मॉल, इट बिकम स्मॉल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइज जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ये मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। सो व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड व्हाट हैपेंस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। साइमल्टेनियसली व्हाट विल हैपन, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, दैट मीन्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर जो है वो नॉन मेटेलिक होगा।
मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वह होता है। एंड लास्ट वन इज़ द डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो ऑब्वियसली अगर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा स्टूडेंट्स तो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगा। और अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज जब नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इंक्रीज होता है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है। और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जब डिक्रीज होता है एंड इलेक्ट्रो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, सो नाउ हियर इफ वी सी if we see this the arrow now down the group, now down the group मतलब ये ग्रुप में जब हम नीचे नीचे जाएंगे तो what happens, तो we can see clearly that increasing atomic radius। तो ये एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। जब ऊपर से जब हम नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। मैंने आपको डायग्राम बताया था, एक स्मॉल, फिर बाद में बड़ा सर्कल, फिर और बड़ा सर्कल। तो आप देख रहे कि एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है यहाँ पर। जैसे हम ग्रुप नीचे नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस यहाँ पर एक पॉइंट है, इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। सेकंड वाला जो पॉइंट है, सेकंड वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हम पीरियड में क्या हो रहा है, जैसे हम इधर जाएंगे लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। पर डाउन द ग्रुप में जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब डिक्रीज होती है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है। सो नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड पॉइंट हियर, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे डाउन द ग्रुप वी सी दैट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होता है एंड हेंस द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था लिथियम, यहाँ पर लिथियम है और यहाँ पर सोडियम है और यहाँ पर पोटेशियम है। तो मैंने आपको बताया था पोटेशियम इज़ बेटर रिएक्टिव दैन सोडियम, और सोडियम जो है लिथियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस तरह से आप नीचे जैसे जब देखेंगे रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उसके जो मेटेलिक कैरेक्टर्स है वह भी बढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिगर 2.10। So the periodic trend in the, one second, the periodic trend in the metallic character of element is clearly understood from their position in the modern periodic table। तो मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में जो यहाँ पर मालूमात मिलेगी दैट इज़ डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जैसे कि अभी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है सपोज, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, उसका मेटेलिक कैरेक्टर जो है यहाँ पर ज़्यादा होगा। और जैसे 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 हम ऐसे इस तरफ जाएंगे तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होने वाला है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है उसका मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होगा और ये एलिमेंट का जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो ज़्यादा है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, दैट इज़ डिपेंड ऑन द पोजीशन, वो कौन से ग्रुप में है या कौन से पीरियड में, इसके ऊपर डिपेंड होगा। ओके, सो नाउ let us first consider the metallic character of the elements belonging to the same group। तो अभी हमने फर्स्ट ग्रुप के बारे में हमने देखा था कि डाउन द ग्रुप जैसे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, उसका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप देखेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ओके, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाता है और मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ जाता है। ओके, सो नाउ
इफ़ आई आस्क यू वाई, क्योंकि क्या होता है, जैसे हम डाउन द ग्रुप जब जा रहे होते हैं तो उसके शेल्स जो है ना, वो शेल्स बढ़ जाते हैं। इसमें एक शेल होगा तो इसमें दो शेल होंगे, तो इसमें तीन शेल होंगे। तो आप देख रहे कि शेल जैसे बढ़ेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल यह बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से एटॉमिक साइज जो है यह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एटॉमिक साइज बढ़ जाता है डाउन द ग्रुप, देयरफॉर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कैरेक्टर भी बढ़ जाता है। तो यही मैंने अभी डिस्कस किया। वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप अ न्यू शेल गेट्स एडेड resulting in an increase in the distance between the nucleus and the valence electron. So what will happen then? So this results in lowering the effective nuclear charge and thereby lowering the attractive force on the वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अभी ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। ओके, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो एट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी रिड्यूस्ड, और इसका इफेक्टिव जो चार्ज होगा वह रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, so now if I talk about next line, as a result of this tendency of an atom to lose electron increases। तो आप देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव फोर्स जो है ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस। तो लेस होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है इजीली वह किसी और को दे सकता है, लूज कर सकता है। ओके, तो also the penultimate shell becomes the outermost shell on losing valence electron। तो सपोज अभी यहाँ पर जो है न्यूक्लियस है और ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है और फिर ये आपका सेकंड ऑर्बिट है। ओके, आप देख रहे हैं इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये आपका लास्ट ऑर्बिट है। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन वो दे देगा। तो देने के बाद में यू कैन सी दैट अब ये और इलेक्ट्रॉन ही चला जाएगा तो ये ऑर्बिट भी चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी क्या होगा, तो ये और इलेक्ट्रॉन चला गया। ओके, इलेक्ट्रॉन चला गया तो अभी ऑर्बिट भी चला गया। तो ये जो ऑर्बिट है ये आपका पेनल्टिमेट शेल था, अब ये होगा आपका आउटर मोस्ट शेल। तो यह जो आपका सेकंड शेल था, एल शेल था, वो अभी आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया। क्या हो गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया। और पेनल्टिमेट शेल जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑलरेडी। तो ये आपका स्टेबल हो गया, कंप्लीट ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पहले से मौजूद होने की वजह से बाहर एक ऑर्बिट था और एक इलेक्ट्रॉन था तो दो दे दिया। तो उसके वजह से क्या हो गया, तो इलेक्ट्रॉन चला गया, ऑर्बिट भी चला गया। तो आप देख रहे हैं कि अभी जो एल शेल जो है वो आउटरमोस्ट ऑर्बिट बन गया है एंड पेनल्टिमेट शेल इज़ नाउ द outermost shell and it is a complete octet। तो therefore resulting cation has a special stability। तो वही अब ये सोडियम के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये Na+ है स्टूडेंट्स। तो Na+ जो है अभी इसके पास स्टेबिलिटी है नियरेस्ट टू द नियॉन, दैट इज़ Ne2 8। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था। ओके, सो नाउ we can say that the metallic character of an atom is the tendency to lose electron। ये मैंने आपको बार बार बताया था कि metals जो होते हैं they always lose electrons, that is metals have 1 electron in the outermost shell। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और फिर एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सोडियम भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, मैग्नीशियम भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है एंड सोडियम बिकम्स Na+, सोडियम बिकम Na+ और फिर बाद में मैग्नीशियम बिकम्स Mg2+। ओके, एंड एल्यूमिनियम बिकम्स Al3+। तो ये सारे केशंस है, ये क्या है, ये सारे केशंस है स्टूडेंट्स। ओके, तो सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स Na+, मैग्नीशियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स Mg2+, एंड एल्यूमिनियम loses 3 electrons become Al3+ cations। So these all are cations। Okay, so now therefore following
trend is observed, that is metallic character of the elements increases while going down the ग्रुप। तो मैंने आपको बताया था ये आपका ग्रुप है, तो जैसे आप नीचे नीचे जाएंगे उसका एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वाई एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर के शेल जो है ना, और बहुत सारे शेल्स है, इसमें सिर्फ 2 ही शेल है, इसमें एक ही शेल है, ऐसे। तो इस तरह से जब शेल्स बढ़ेगा तो उसका साइज़ भी बढ़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है वह डाउन द ग्रुप, जैसे हम जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। ये हमने फिगर नंबर 2.10 में भी देखा है। ओके, सो नाउ while going from left to right within a period the outermost shell remains the cell same। तो पीरियड में जैसे स्टूडेंट्स, जैसे अभी ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियड नंबर 2 अगर आपने ले लिया तो आप देख रहे हैं कि पीरियड में शेल जो है, जैसे कि अभी पीरियड नंबर 2 की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, तो यहाँ पर भी फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, यहाँ पर भी फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, तो यहाँ पर भी फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। तो आप देख रहे हैं कि शेल नंबर ऑफ शेल्स आर ऑलवेज 2। वाई नंबर ऑफ शेल्स आर ऑलवेज 2? बिकॉज पीरियड इज़ 2। तो मेरे को बताइए पीरियड नंबर 3 में कितने शेल्स होंगे, पीरियड नंबर 3 में कितने शेल्स होंगे? ऑफ कोर्स 3 शेल्स होंगे, 1, 2 और 3। तो जैसे आप इधर लेफ्ट में भी जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका 3 ही शेल आपको मिलेंगे, बिकॉज पीरियड नंबर 3 मीन्स 3 शेल्स, पीरियड नंबर 2 मीन्स 2 शेल्स। ओके, सो नाउ while going from left to right in the periodic table in a period, outermost shell remains the same. Okay, so however the positive charge on the nucleus goes on increasing while the atomic radius goes on decreasing, and thus the effective nuclear charge जो है thus the goes on decreasing and thus the effective nuclear charge goes on increasing। तो अभी मैं पीरियड नंबर 2 के बारे में यहाँ पर बात किया था। तो दिस पीरियड नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 शेल्स है। ओके, 2 शेल्स है, लेकिन आप जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जब जाएंगे उसका एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है वो आप देख रहे हैं कि उसका साइज़ जो है बहुत छोटा हो गया। देखो आप देख, इसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, इसका एटॉमिक रेडियस कम है। तो हालांकि इसके ये जो आउटरमोस्ट शेल है उसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि एक बड़ा क्लासरूम है जहाँ पर 30 बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन सिर्फ 11 ही बच्चे प्रेजेंट है। तो टीचर क्या करेगी, सब बच्चों को अपने पास नज़दीक बिठाएगी। तो उसके वजह से क्या हो गया कि फर्स्ट बेंच में सारे बच्चे फर्स्ट चार अगर रो रहेंगे तो चारों रो के फर्स्ट बेंच में ही वो सारे बच्चे एकोमोडेट हो गए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी सारे एटम्स जो है यहाँ पर एकोमोडेट हो जाएंगे। एकोमोडेट होने के वजह से वह जो है उसका एटॉमिक साइज जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। स्टूडेंट्स, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वह दूर बैठा है। तो जैसे कि अगर स्टूडेंट एक ही आया, पूरा क्लास में एक ही स्टूडेंट है, तो थोड़ा वो थर्ड बेंच में भी बैठेगा तो टीचर उसे कुछ बोलेगी नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर जो एक ही इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वह एटॉमिक साइज़ जो है वो बढ़ गया है। और यहाँ पर जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो सारे इलेक्ट्रॉन्स नज़दीक आएंगे और वह सारे इलेक्ट्रॉन्स मतलब शेल नज़दीक आएगा। शेल नज़दीक होने की वजह से एटॉमिक साइज जो है उसका छोटा हो जाएगा। ओके, and then here we can say as a result of this tendency of atom to lose valence electron decreases within a period from left to right। तो यहाँ पर जो है लेफ़्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो मैंने अभी बताया कि ये सेकंड शेल में इधर एक ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर सेकंड शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप देख रहे हैं कि इसका साइज़ बढ़ गया। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होने के वजह से और शेल जो है वह कॉन्टैक्ट हो गया, न्यूक्लियस के पास गया है आउटरमोस्ट शेल। तब उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो होगा ऑन द आउटरमोस्ट शेल जो होगा वो ज़्यादा होगा। इस वजह से क्या होगा, यहाँ के जो आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वह ईजीली लूज़ नहीं करेंगे। ओके,
So the two factors, namely the increasing the increasing nuclear charge and decreasing atomic radius as we go from left to right within a period, are responsible for increasing the effective nuclear charges. तो कौन से दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स? इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस. तो इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, ये दो फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है in increasing the effective nuclear charge. So now what will happen? Therefore the valence electron are held with a greater and greater attractive forces. This is called electronegativity of an atom. तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये आपका इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो है आपका इस एटॉमिक साइज़ बहुत छोटा है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह, इसका न्यूक्लियर चार्ज ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? इट विल नॉट लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हेल्ड कैसे करेगा? वो ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्सेस टुवर्ड द न्यूक्लियस. सो दिस is the electronegativity of the atom. So now due to increase electronegativity from left to right within a period, तो अभी नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. पीरियड में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज होती है. The ability of an atom to become anion by accepting outside electrons goes on increasing. तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वह मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वह टेंडेंसी रखता है. जैसे क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेगा. ओके, सो दैट एबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है कि वह उनको इलेक्ट्रॉन्स लेना ही पड़ता है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स है. तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ईजिली नहीं दे पाएंगे क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो रहा है? वह बढ़ गया है. तो इसलिए बाहर के इलेक्ट्रॉन्स ईजिली वह नहीं दे पाएगा. सो नाउ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म एनियन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट. तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? कि कोई भी नॉन मेटल जो है वो क्या करता है? उसके पास एक टेंडेंसी होती है कि वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और इट फॉर्म्स एन एनियन. एनियन मतलब जैसे मैंने आपको बताया था क्लोरीन माइनस. वाई इट बिकम्स माइनस? बिकॉज वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले रहा है. सोडियम से कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है. सो इट बिकम्स अ क्लोरीन आयन, दैट इज क्लोरीन अनायन. ओके, so now here it is given in the box. Always remember, while going downward in any group the electropositivity of the element goes on increasing. वो हमने डायग्राम में भी हमने देखा. while their electronegativity goes on decreasing. So while going from left to right in any period the electronegativity of an element goes on increasing while their electropositivity goes on decreasing. The larger the electropositivity or electronegativity of an element, higher is the reactivity. तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी ये जो चीज़ें जो है वो हमने इसमें डायग्राम में हमने ऑलरेडी देखा है. यहाँ पर देखो कि यहाँ पर बताया कि इंक्रीज ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है जैसे हम लेफ़्ट टू राइट में जाएंगे. ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है मतलब क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है. इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है. मतलब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है. तो यहाँ पर भी हमने देखा अच्छी तरह से. आप पैराग्राफ वापस से सुन सकते हैं. सो ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम आपको अच्छी तरह से याद रखना है. तो आप देख रहे हैं दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मेटालिक
character what is the cause of non-metallic character ऑफ एन एलिमेंट. तो मैंने आपको अभी बताया कि नॉन मेटल्स जो होते दे हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज जो है वो ज़्यादा होता है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो इजीली वो नहीं लूज़ कर पाता. सो दैट्स वाई they have a non-metallic character of an element and they form anion. So question number 2, what is the expected trend in the variation of non-metallic character of the elements from left to right in a period. तो अभी expected trend क्या trend follow होता है of नॉन मेटेलिक कैरेक्टर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. तो आप देख रहे लेफ़्ट टू राइट में जब हम जा रहे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है वहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है. तो ये हमने डायग्राम 2.14 में भी देखा है. तो क्वेश्चन नंबर 3, what would be the expected trend in the variation of non metallic character डाउन द ग्रुप. अभी पीरियड में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा डिक्रीज़ होगा. क्या होगा डिक्रीज़ होगा. ओके, तो इलेक्ट्रो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा डिक्रीज होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, that is gradation in halogen family. Gradation in halogen family. So first of all students, what is halogen family? Halogen family group 17 is called the halogen family. Okay, so now where is the group 17 located? So suppose this is the layout of modern periodic table. This last group is the 18th group and the second last is the 17th group. So group 17, so this is called as the halogen family. So now group 17 contains the member of halogen family. All of them have the general formula X2. So now what do you mean by X? X is any element. X is any element and it has a valency 2. So now instead of X, if I take chlorine, so it will be Cl2. If I take fluorine, it will be F2. If I take bromine, it will be Br2. If I take iodine, it will be I2. Okay, so molecular formula of fluorine is F2, molecular formula of fluorine is Cl2, molecular formula of bromine is Br2 and molecular formula of iodine is I2. Okay, so now that is written here. A gradation is observed in their physical state down the group. Fluorine F2 and chlorine Cl2 and gas bromine Br2 is a liquid while iodine I2 is a solid. So if I talk about this 17 group, okay, if I talk about this 17 group, you can say that this is 17 group. Okay, so first element is fluorine, second element is chlorine, third element is bromine Br and fourth element is iodine. So in this we can say that there is, while we go down the group 17, and group 17 is also called as the halogen family. So when we go down the group 17, we can see that there is a gradation in the physical state. Gradation in the physical state means गैस पहले आएगा, उसके बाद में लिक्विड, उसके बाद में सॉलिड. तो इफ आई सी द फर्स्ट टू एलिमेंट दैट इज फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर बोथ गैस, दिस टू आर बोथ गैस. Now if I talk about bromine, then comes bromine. Bromine is a liquid. And then if I talk about iodine, iodine is a solid. So this means that there is a gradation in the physical state. Down the group number 17.
Okay students, so this, what does it mean, the gradation in halogen family? So moving on to next topic, that is do you know, this is the last topic, do you know? So here what it is given, it is given that capital M plus capital M plus water gives MOH2 plus hydrogen. So what does this mean? The M means metal and H2O means water, and MOH2 MOH MOH2 is the metal hydroxide and H2 is the hydrogen. Okay, so now the general chemical equation indicating the reaction of alkaline earth metal is given above. So this is the general chemical equation. This is the general chemical equation which is given here, and this equation is of alkaline earth metal, that is group 2. Group 2 is called as alkaline earth metal. Okay, so this is group 1 which is called as alkali metal. Group 1 is called as alkali metal, and group 2 is called as alkaline earth metal. So here we are talking about alkaline earth metal. So while going down the second group as Be, Mg, Ca, Sr and Ba, that is beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium. So that is the second group. So if I look here, if I draw the second group, this is second group. So first element is beryllium, beta, mange, car, centro, bar, and then it comes Razi. Okay, radium. So here we see that this is beryllium, this is magnesium, calcium, strontium, barium, and then comes radium. Okay, so now down the second group, this is second group, down the group, what we see, there is a gradation in the chemical properties. There is a gradation in the chemical properties. जैसे जैसे हम नीचे नीचे जाएंगे तो chemical properties में बढ़ोतरी होती है. So that is seen in the second group. So now while going down the second group, the reactivity of the alkaline earth metal goes on increasing. तो जैसे जैसे नीचे नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी, ये सारे जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो एलिमेंट है, इसके रिएक्टिविटी जो है क्या हो रही है, बढ़ रही है, एंड देयर बाय ईज विथ विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग. और जब ये एलिमेंट जो है जैसे जैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो ऊपर वाले एलिमेंट थोड़े कम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और ये मैग्नीशियम जो है थोड़ा ज़्यादा करेगा, कैल्शियम और स्ट्रोंटियम बैरियम जो उससे ज़्यादा रिएक्ट करेंगे. तो रिएक्शन जो है डाउन द ग्रुप अगेन क्या हो रहा है, रिएक्शन बढ़ रहा है. ओके, सो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट बेरिलियम, तो इफ़ आई टॉक अबाउट बेरिलियम में अगर देखेंगे तो बेरिलियम जो है वह वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं होता. बेरिलियम जो है वो वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं होता. तो दिस बेरिलियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता, बट दिस मैग्नीशियम also does not react with water but it reacts with the steam. It reacts with the steam. देखो अभी पहले तो बेरिलियम बिल्कुल रिएक्ट नहीं हो रहा था वाटर के साथ, ना स्टीम के साथ, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम जो स्टीम के साथ रिएक्ट हो रहा है, मतलब अभी इसकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेना शुरू हो गया है. एंड दिस लास्ट वन, दिस कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, ये जो है तीनों, वो तीनों वाटर के साथ जो है वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग रेट. मतलब कैल्शियम थोड़ा कम वाटर के साथ रिएक्ट होता है, स्ट्रोंटियम उससे ज़्यादा और बैरियम उससे ज़्यादा. तो ऑल दिस थ्री एलिमेंट्स विल रिएक्ट विथ वाटर. ओके, दे रिएक्ट विथ वाटर विद इंक्रीजिंग ऑर्डर एट रूम टेम्परेचर. ओके, सो आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया. और फिर thanks for watching and listening to this lecture. I hope so this chapter I have completed. I have put in lots of effort so that you understand better.
मैं जितने लिमिटेड सोर्स में मैं काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा अगर अनटाइडी रहा तो मैं सॉरी तो नहीं बोलूँगा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ लिसन एंड वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली. नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स, सी यू.